going to start Bragg's equation derivation. Let us consider a crystal lattice in which identical atoms lie in equidistant parallel planes of atoms, for example 1, 2, 3, etc., with interparticle or planar spacing equal to d, small d. ठीक है स्टूडेंट? So let us suppose plane 1, plane 2, plane 3. This is the incident X-rays. Let a beam of monochromatic X-rays of wavelength lambda strikes on a crystal. This is the crystal of planes etc. 1, 2, 3. And for example, this is the incident ray and this is a reflected ray. When this ray incident on plane 1, now this is again second ray that is strike onto the plane 2. Similarly, so these are the different planes, and this is a crystal lattice in which identical atoms lie in equidistant parallel planes. ये स्टूडेंट आपके प्लेन्स हैं और यहाँ पे क्या है स्टूडेंट? एटम्स. यहाँ पे क्या है? आइडेंटिकल एटम्स लाई ऑन ए plane. These are the atoms. For example, these are the atoms lie on plane 1 and plane 2, and let a beam of X-ray of monochromatic wavelength lambda strikes on crystal, makes an angle theta to the plane. This is the angle theta. This is the angle theta. Makes an angle theta. Incident ray makes an angle theta with the plane. So some of the radiation will be reflected from the successive planes. Students, these are the reflected beams from the when this incident ray strike on the planes. So this is also an angle theta, because law of reflection is angle of incidence is equal to angle of reflection. This is also theta. And student, this is the interplanar spacing, means spacing between two parallel planes, OC. This OC is the spacing between parallel planes, and this a normal. This is a normal. Draw from point O on the incident beams at point D and at point E. So this is a small d. Small d is the distance between the interplanar spacing, and this is a angle of incidence, angle of reflection, because this is the incident beam and that is a reflected beam, and this is the extra DC plus CE is the path difference between these two waves. So let the wave front A and B are taken as reference, are in phase. For example, student, ये जो आपके wave fronts हैं, waves हैं, for example, these two waves are in phase with each other. Then two waves after reflection will be in phase provided the extra distance traveled by wave B as in integral multiple of wavelength lambda. अब स्टूडेंट फॉर एग्जांपल, मैंने आपको आगे भी समझाया हुआ है, फॉर एग्जांपल ये आपकी एक वेव है, ठीक है स्टूडेंट, एंड ये आपकी दूसरी वेव है. नाउ these two waves are in phase, means crest fall on crest, trough fall on trough. अब स्टूडेंट इनमें पार्ट डिफरेंस कितना है देखिए ध्यान से. ये फुल वेव है, तो कितना पार्ट डिफरेंस आ गया? 1 लैम्डा. कितना आ गया? 1 lambda. So when the part difference between the two waves are 1 lambda, 2 lambda, 3 lambda and so on, integral multiple of wavelength lambda, then these two waves are in phase with each other. So for example, ये जो आपकी two waves हैं A and B taken as reference and are in phase, तो रिफ्लेक्शन के बाद भी ये waves क्या होंगी? are in phase, लेकिन provided एक extra distance आ जाना है इन दोनों के बीच में, and that extra distance is integral multiple of wavelength lambda. So this is a condition for constructive interference of two
waves when the two waves are in इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ वेवलेंथ लैम्डा, एक्स्ट्रा डिस्टेंस आ जाएगा, तो ये आपकी दो वेव्स क्या होंगी? इन फेज. सो दिस इज द स्मॉल डी डिस्टेंस बिटवीन द वेव्स. सो फॉर द टू वेव्स 1 and 2 इन फेज वी मस्ट हैव पार्ट डिफरेंस. क्या होना चाहिए स्टूडेंट? इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लैम्डा. एन इज ए इंटीजर, एन इज ए इंटीजर. अब स्टूडेंट ये हमने प्रूव करना है कि ये एन लैम्डा इज इक्वल टू क्या है? 2d साइन थीटा. ठीक है स्टूडेंट, ये आपकी ब्रैग्स इक्वेशन है और अब हम डेरिवेशन स्टार्ट करने वाले हैं. सो दिस इज द डायग्राम. मैंने अभी आपको कहा इंसिडेंट रे है, ये रिफ्लेक्टेड रे है, डिस्टेंस बिटवीन द टू प्लेन्स, और ये क्या है? आपके नॉर्मल्स. हमें एक्स्ट्रा डिस्टेंस निकालने के लिए स्टूडेंट क्या फॉल करने पड़ेंगे? नॉर्मल्स फॉल करने पड़ेंगे इन रेज के ऊपर, इन वेव्स के ऊपर. ठीक है स्टूडेंट, क्या डिस्टेंस ए ओ एल, ए ओ एल एंड डिस्टेंस बी सी एम, ये वाला डिस्टेंस ए ओ एल एंड बी सी एम डिफर बाय ए होल नंबर ऑफ वेवलेंथ. ये दोनों इन वेव्स और इस वेव के बीच में स्टूडेंट पार्ट डिफरेंस कितना होना चाहिए? इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ वेवलेंथ. द एक्स्ट्रा डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय वेव बी. स्टूडेंट ये वेव बी ने क्या किया है? एक्स्ट्रा डिस्टेंस ट्रेवल किया है ना. ये वाला डिस्टेंस क्या है? ये वाला, ये आपका एक्स्ट्रा डिस्टेंस है. ये वाला, ये एक्स्ट्रा डिस्टेंस है. किसने ट्रेवल किया? ये वेव बी ने, एज कंपेयर टू वेव ए. ठीक है स्टूडेंट, एक्स्ट्रा डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय वेव बी कैन बी ऑब्टेन बाय ड्रॉपिंग. क्या हमने ड्रॉप किया? परपेंडिकुलर्स. ये परपेंडिकुलर है स्टूडेंट, ओडी एंड ओई फ्रॉम पॉइंट ओ ऑन द वेव. किसके ऊपर? वेव 2, मतलब वेव बी. तो फॉर एग्जांपल ये आपकी स्टूडेंट ट्राइंगल बन गई. ये आपकी क्या बन गई है? एक ट्राइंगल. ये क्या बन गई है? ट्राइंगल ओडीसी. ठीक है स्टूडेंट, और ये डी के आपका पार्ट डिफरेंस. अब ओ ए इज इक्वल टू क्या है? बी डी. ये आपका जो ओ ए है ये किसके बराबर है? इस बी डी के बराबर. ये दोनों वेव्स क्या हैं? पैरेलल हैं. तो ये ओ ए इज इक्वल टू क्या है? ये बी डी. ऐसे स्टूडेंट ये आपका ओ एल है, ये ओ एल किसके बराबर होगा? इस ई एम के. ठीक है स्टूडेंट, अब ये वाले डिस्टेंस दोनों बराबर हैं, ये वाला और ये वाला. ओ एल ये वाला और ये वाला. अब एक्स्ट्रा पार्ट डिफरेंस क्या आ गया स्टूडेंट आपका? और ये डीसी किसके बराबर है? सीई के. ये जो एक्स्ट्रा पाथ आया है डीसी प्लस सीई, ये एक्स्ट्रा पाथ है. कह रहा साइन थीटा क्या होगा? परपेंडिकुलर डीसी ओवर हाइपोटेन्यूज ओसी. सो ओसी क्या आपका? स्मॉल डी. ये आपका स्मॉल डी है, तो वैल्यू पुट कर दीजिए. साइन थीटा क्या आ गया? डीसी ओवर स्मॉल डी. डीसी हमारे पास क्या आ गया? ये हमारे पास जो एक्स्ट्रा डिस्टेंस था डीसी, वो आ गया, क्या आ गया? स्मॉल डी साइन थीटा. ठीक है स्टूडेंट, सिमिलरली हमने सीई भी निकाल लेना है. एक्स्ट्रा डिस्टेंस ट्रेवल बाय वेव 2 क्या आ गया था? डीसी प्लस सीई, और डीसी किसके बराबर है? सीई के. क्या आ गया एक्स्ट्रा डिस्टेंस? 2dc, और डीसी क्या आया हुआ है? डी साइन थीटा. तो 2dc क्या आ गया? 2d साइन थीटा. और ये आपका 2dc है गया एक्स्ट्रा पार्ट डिफरेंस. एक्स्ट्रा पार्ट डिफरेंस किसके बराबर होना चाहिए? इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ वेवलेंथ. सो एन लैम्डा क्या आ गया? 2d साइन थीटा, विच इज द ब्रैग्स इक्वेशन. ठीक है स्टूडेंट, सो दिस इज द डीसी प्लस सीई. जो एक्स्ट्रा पाथ आया था वो क्या आ गया? 2d साइन थीटा, और एक्स्ट्रा पाथ क्या है? पार्ट डिफरेंस. और पार्ट डिफरेंस बिटवीन द टू वेव्स अगर इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ वेवलेंथ होगा तो दोनों वेव्स क्या होंगी? इन फेज. इन फेज होगी तभी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस पैदा होगी, और तभी हमें यहां पे ये रिफ्लेक्टेड बीम्स नजर आएंगी. ठीक है स्टूडेंट, अदरवाइज अगर क्रेस्ट फॉल ऑन ट्रफ एंड ट्रफ फॉल ऑन क्रेस्ट, तब क्या होगा? डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस. डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी, देन देयर इज
नो लाइट, ठीक है स्टूडेंट, और नो रिफ्लेक्शन. सो एन लैम्डा इज इक्वल टू 2d साइन थीटा विच इज कॉल्ड ब्रैग्स इक्वेशन. ठीक है स्टूडेंट, ये हमने प्रूव कर दी है. सो एमसीक्यूज कह रहा ब्रैग्स इक्वेशन यूज टू आइडेंटिफाई, क्या आइडेंटिफाई करने के लिए यूज होता है? डिस्टेंस बिटवीन टू एटम्स इन वन प्लेन, इंटरलेयर डिस्टेंस, डेंसिटी, नंबर ऑफ लैटिस यूनिट. इंटरलेयर डिस्टेंस, क्योंकि क्या फार्मूला था? एन लैम्डा इज इक्वल टू 2d साइन थीटा. एन आपका इंटीजर है, लैम्डा आपको पता है आपने कौन सी एक्सरे की बीम फॉल की है, थीटा आपको पता आपने किस एंगल से बीम को फॉल किया है. ओवर द लेयर्स तो हमें क्या पता लग गया? स्मॉल डी डिस्टेंस बिटवीन एटॉमिक प्लेन्स हमें पता चल गया. सो ब्रैग्स इक्वेशन यूज्ड टू आइडेंटिफाई द इंटरलेयर डिस्टेंस. नेक्स्ट आएगा स्टूडेंट आपका यूनिट सेल एंड क्रिस्टल लैटिस. दिस वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट लेक्चर.